stored in the database, right? So we have already studied about the select, project, theta, equijoin, natural join, union, intersection, difference, Cartesian product, and division. So we have seen all these notations, all their purpose. Now we move to the next kind of relational algebraic operations, and these relational algebraic operations are known as aggregate functions and grouping. So till now we have seen whenever we retrieve any information, it is we write a condition over a single tuple or any column, right? But when we need a group of record, or when we apply any function over group of records, then we use the aggregate functions. So what is the purpose of aggregate functions? So we basically mathematical function, right, that applied on collection of values of the database. So these functions are like you have seen, sum is always applied on the number of rows or number of values. Average, again, average is applied only on the number of values. Maximum, again, we have to find any value that is maximum among all the values. Similar case of the minimum. And the count is used how many tuples or how many rows exist in the database. So we have to use some of the functions. We have to use some functions like sum, average, maximum, minimum, and count. These functions are used in simple statistical queries that summarize information from the database tuple. And the syntax for writing to retrieve any information from a group of records, that is denoted as, this is a symbol that is used for the aggregate function. So this is a basically scripted f. What is it? Is scripted f, and then we write the function and list of argument. List of, here we have to write the column names on which we have to write the function and over a relation, that is R. And when we do, we have to combine this function based on any grouping attribute. So we have to write the grouping attribute. So see here the symbol of this, we first write at which attribute we have to group all those records. Then we have to write function name, function of the either sum, either average, either maximum or minimum, and count over a relation R. This is a function in that. So what is the, we have discussed an example. See how to use this all functions. See, let we have a employee in a relation, and we want to retrieve the maximum salary from the employee relation. So we have to write a scripted f max salary from the employee. Scripted f max salary from the employee. So it will basically retrieve the maximum value, maximum salary value from the employee relation. Say for example, in this table, let for example, this is an employee table. Employee table is visible or not? सर Employee table visible हो रही है? सर आपने सर कल लास्ट में 2 क्वेश्चन से मतलब दिए थे सर, आपने बोला था आज डिस्कस करेंगे। चलो मैं अभी पहले इसको 1 मिनट में फिनिश करता हूँ, फिर वापस आते हैं, ठीक है? भूल गया था मैं, ठीक है? तो ये कंप्लीट कर लेता हूँ। ये समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द एग्रीगेट फंक्शन? एग्रीगेट फंक्शन बेसिकली अप्लाई ऑन ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड, राइट? सो दीज आर, और आपको पता ही है वो स्टैटिस्टिकल फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन कौन कौन से होते हैं? एवरेज, सम यानी टोटल निकालना, मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मिनिमम वैल्यू निकालना, या काउंट करना कि कितने उसमें टपल्स हैं। ये एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है? अब हम जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल बताया था, सी कि अगर हमने सिंटेक्स लिखा scripted f max salary employee, that is this, the meaning of this, we have to retrieve maximum salary from the employee table. So in that case, see, this is a table employee in which we have a records of
employee, and we also having a value that is salary. So when we do scripted a max salary from employee, it will basically check the maximum value at the and what value is 5,000 is the maximum. So this function basically retrieve the maximum value from the employee. Similarly, we can use minimum salary, we can get the minimum value. Similarly, we find the sum of salary, right? That is total sum of the salary from the employee relation. Similarly, we can count number of employee, right? So we can count over the SSN because SSN is unique number. So that's from this we can get the maximum number of records from employee table, right? So come to the example again. मैंने कौन कौन से दिए थे, आप क्या एक बार बता सकते हैं? क्वेश्चंस क्या दिए थे? Sir, retrieve the name and address of all employee who works for research department. से फर्स्ट क्वेश्चन था. ओके ओके, अभी आपका पहले ही यानी कि एक लेक्चर पीछे चल रहे हैं आप लोग, ठीक है, कोई नहीं. मैं वापस आता हूँ, ले लेते हैं. So this is your schema, fine. And first question is retrieve the name of employee. Name of employee whose Name and address. Name of employee. Name and address of employee, right? Name and address of employee. Address of employee who works for research department. Yes, sir. Research. Right. So we have to write the query, write the relational algebraic statement for this. Okay. See, first of all, whenever any query is given to you, you have to analyze what we want to extract and from where. क्या हमें निकालना है और कहाँ से निकालना है, and the database. See, when we analyze in this database, so you know, we retrieve the name and address of employee. तो बताइए कि ये name और address employee का किस टेबल में है? Sir, employee table. Employee table. Employee table में, right? So we have to use this table to get the name. Name means name first name, last name, or if you want middle initial, you can also take this three. और क्या चाहिए था? Address. So we have to retrieve these employees information. But किसकी employee की information? And now here see who works for research department. तो ये जो रिसर्च डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन. अब रिसर्च डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? रिसर्च डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन किस टेबल से मिलेगी? अगर हम एम्प्लॉय टेबल की इंफॉर्मेशन, देखिए हम एम्प्लॉय टेबल को एक्सेस कर रहे हैं तो केवल यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर है. यहाँ पे क्या है? डिपार्टमेंट नंबर. हमें जबकि दिया क्या गया है? हमें दिया गया है रिसर्च डिपार्टमेंट नेम, यानी नेम ऑफ द डिपार्टमेंट. तो नेम ऑफ द डिपार्टमेंट किस टेबल में है? हमने इसमें चेक किया तो हमें पता चला कि वी हैव टू गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट, राइट? कि डिपार्टमेंट में यहाँ पे कोई ना कोई एक रिसर्च करके हमारे पास एक एंट्री होगी, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी गई होगी कि रिसर्च डिपार्टमेंट नंबर इज सपोज 5, उसका मैनेजर नंबर इज गिवन, कीमो मैनेजर कहाँ से. यानी कि हमें सबसे पहले ये एंट्री निकालनी पड़ेगी कि रिसर्च डिपार्टमेंट. क्यों? क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? एम्प्लॉय टेबल से, यानी कि ये दो टेबल यूज होनी है, यानी कि कहीं ना कहीं हम इनको और डिपार्टमेंट टेबल को और एम्प्लॉय टेबल को कहीं से ज्वाइन करें.
और डिपार्टमेंट और इस टेबल को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास लिंक क्या है, किसके थ्रू हम ज्वाइन कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो कॉमन है इन दोनों में? डिपार्टमेंट नेम तो इसमें दिया ही नहीं है। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नंबर, नंबर। देखिए यहाँ पे जो फॉरेन की क्या दी है, फॉरेन की क्या दी है, डी नंबर है, जो कि मैप कर रही है डी नंबर, यानी कि रिसर्च डिपार्टमेंट के इस नंबर को, जो ये नंबर आया है, वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय जो डी नंबर यहाँ पे होंगे, सपोज दिस इज 5, दिस इज आल्सो 5, राइट, कहीं कहीं ना कहीं मिलेंगे। ये ऐसे कहीं ना कहीं कई सारे सिंबल्स होंगे, तो यानी कि ये मैच कर जाए तो हमें इनके वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब मिल जाएंगे। ये बात सबको समझ में आ रही कि हाउ टू रिलेट ऑल दिस, कि हमने क्या चाहिए ये चेक करें। ठीक है, कैसे मिलेगा उसके लिए आप देखिए कि हमें दिया क्या गया है, और हमें रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए चाहिए तो रिसर्च डिपार्टमेंट कहाँ से आ रहा है, उससे हमारी किस कौन सी इन दो टेबल जहाँ चाहिए कि जिससे हमें मैच कर रहा है, कोई ऐसा एट्रीब्यूट यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, इसको इसके साथ ज्वाइन करें। ठीक है, तो वन बाई वन हमें स्टेप निकाला कि सबसे पहले हमने क्या किया कि रिसर्च डिपार्टमेंट के कौन सा नंबर है, कैसे निकालेंगे, तो वी गेट सिग्मा सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें रिसर्च डिपार्टमेंट किसी एट्रीब्यूट दिया उसके थ्रू जाना है, डायरेक्ट नहीं। तो सिग्मा डिपार्टमेंट नेम इक्वलेंट टू रिसर्च और किस टेबल से, इससे कमिंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट टेबल। ये बात सबको समझ में आ रही? अब इसमें से हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर, राइट। तो हमारा लेट इट इज ए फर्स्ट स्टेप, सो वी गेट द रिसर्च डिपार्टमेंट, लेट इट इज ए T1 गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट रिसर्च डिपार्टमेंट, राइट। अब हम इस T1 टेबल को किसके साथ ज्वाइन करें, बताएं बच्चों? T1 टेबल को किसके साथ ज्वाइन करें, एम्प्लॉय टेबल के साथ। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय में ही एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है। सो T1 नाउ ज्वाइन विद, ठीक है, विच टेबल, एम्प्लॉय एंड ऑन विच कंडीशन, क्योंकि ज्वाइन के साथ हमें कंडीशन देनी पड़ती है। तो कंडीशन क्या है, T1 का जो डी नंबर होगा, T1 जो हमारा टेबल है उसका जो डी नंबर होगा, क्योंकि T1 में हमारे पास एंट्री किसकी है, डिपार्टमेंट नंबर की, और जो किसके इक्विवेलेंट हो, एम्प्लॉय डॉट डी नंबर। क्लियर, ये बात सभी को समझ में आ रही? तो इससे आपके पास सारे रिकॉर्ड इसके साथ में डिपार्टमेंट की भी इंफॉर्मेशन इसमें ही ऐड हो जाएगी, और इसमें डी नंबर एंड सो ऑन रहेगा। अब इस टेबल में से हमें चाहिए क्या इंफॉर्मेशन, इस टेबल से हमें क्या चाहिए, बताओ बच्चों, इस टेबल में से हमें इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? इससे हमें केवल नेम एक और केवल एड्रेस। नेम और एड्रेस, यानी कि T2 टेबल के ऊपर हम क्या अप्लाई करें, कौन सा ऑपरेशन, प्रोजेक्ट क्या देता है, ऑलवेज गिव्स द एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, एट्रीब्यूट। जिसमें हमें क्या चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड, और क्या हमें उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए था, एड्रेस, राइट। सो दिस इज योर रिजल्ट। क्लियर, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ये आपका रिजल्ट आ गया जो आपको चाहिए था। प्रॉब्लम समझ में आई, उसका सोल्यूशन समझ में आया कैसे किया?
किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। इस क्लास में स्टूडेंट कम ही रहते हैं। आदित्य प्रकाश, आदित्य प्रकाश, हाँ बेटा समझ में आया ये? सर चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या था बेटा? बताओ सेकंड प्रॉब्लम क्या थी, क्या दिया था? सर for every project फॉर for एवरी every प्रोजेक्ट located in Chennai फॉर एवरी प्रोजेक्ट लोकेटेड एट located in चेन्नई, yes sir एट चेन्नई क्या करना है? list the project number लिस्ट द नहीं पता क्या है क्वेश्चन पूरा, तो देखना पड़ेगा कहाँ लिखा है। सर क्वेश्चन है for every project located in Chennai list the project number, the controlling department number and the department manager last name address. अच्छा ये है फॉर एवरी प्रोजेक्ट लोकेटेड इन चेन्नई लिस्ट द प्रोजेक्ट नंबर, द कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट नंबर एंड द डिपार्टमेंट मैनेजर्स लास्ट नेम एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ, राइट। तो फॉर एवरी प्रोजेक्ट लोकेटेड एट चेन्नई लिस्ट द project number, the controlling department number and the department manager last name, address and date of birth। राइट, ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी। अब बताओ इसको एनालाइज करिए पहले कि कहां से हमें क्या मिलेगा। फॉर एवरी प्रोजेक्ट लोकेटेड एट चेन्नई लिस्ट द प्रोजेक्ट नंबर, द कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट नंबर एंड द डिपार्टमेंट मैनेजर लास्ट नेम एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ। क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? बताओ क्या इंफॉर्मेशन दी है और कहां से क्या हमें चाहिए। हमने फिर से एनालाइज करो अगर, तो हमें एवरी प्रोजेक्ट लोकेटेड एट चेन्नई, प्रोजेक्ट की लोकेशन यहाँ पे दी हुई है चेन्नई, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ठीक है, लिस्ट द प्रोजेक्ट नंबर, यानी कि हमें क्या क्या चाहिए, प्रोजेक्ट नंबर निकालना है किसी तरह से, और क्या निकालना है, डिपार्टमेंट नंबर, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट नंबर फाइन, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट नंबर आना है, और क्या आना है, एंड डिपार्टमेंट मैनेजर, तो मैनेजर नेम आना है। ठीक है, और क्या, उसका एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ आना है। ठीक है, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है। अब बात आती है, सबसे पहले हमने जैसे पहले भी बताया था कि लास्ट में पहले वाले भी प्रॉब्लम में कि
हाउ टू गेट दिस इंफॉर्मेशन, कि कौन कौन क्या निकालना है और कौन कौन सी टेबल यानी कि रिलेशन है इसमें इन्वॉल्व होंगे, वो आप बताएं। तो बताइए क्या होगा सबसे पहले। प्रोजेक्ट। सर प्रोजेक्ट वाली टेबल। क्या किसी ने मुझे फॉरवर्ड सर किया है? चलिए मैं चेक करता हूँ कि ही इज डूइंग गुड और नॉट। मैं आपको भी दिखाई देता हूँ अगर जुड़ गया हो। अमन अग्रवाल, अच्छा ये क्वेश्चन दिया है, किसी और ने भी फॉरवर्ड किया क्या? हाँ ये, चलिए वो तो क्या लिखा है आपने, एम्प्लॉय। सबसे पहले हमें एम्प्लॉय फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे जब हम फाइल लिख रहे हैं किसका ये नंबर है सर वो बेसिकली? फर्स्ट क्वेश्चन का था सर। अच्छा ये फर्स्ट क्वेश्चन का था, ठीक है कोई नहीं, सेकंड का नहीं दिया, चलिए कोई नहीं, मैं बाद में देखता हूँ। ठीक, अब बात आती है यहाँ पर, तो हमें ये इंफॉर्मेशन जो मिली इनको कैसे निकालेंगे, कौन कौन सी टेबल इसमें इन्वॉल्व होंगी? इसमें टेबल इन्वॉल्व हो रही हैं, देखिए प्रोजेक्ट नंबर, डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट लोकेशन दी है, प्रोजेक्ट लोकेशन किसमें है चेक करो, प्रोजेक्ट लोकेशन, ये तो डिपार्टमेंट लोकेशन है, ये प्रोजेक्ट की टेबल में, राइट। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वन ऑफ द टेबल वी हैव टू यूज दैट इज प्रोजेक्ट, एंड हियर वन ऑफ द एंट्री इज गिवन दैट इज लोकेशन, दैट इज चेन्नई, चेन्नई यहाँ पे कहीं दी होगी, ठीक है। अब इस चेन्नई लोकेशन पे आपके पास प्रोजेक्ट की क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रोजेक्ट नंबर, क्या इससे हमें प्रोजेक्ट नंबर मिल जाएंगे? यस, वी कैन गेट द प्रोजेक्ट नंबर फ्रॉम हियर, क्योंकि इस लोकेशन पे कौन से प्रोजेक्ट नंबर हैं वो आ जाएंगे। और क्या कह रहा है वो, इसमें कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट नंबर या कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट नंबर है, यस वी कैन गेट all these two information can be retrieved from this table। ये बात सबको समझ में आ रही? अब इसके अलावा भी वो कह रहा है, आगे वो कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द डिपार्टमेंट मैनेजर। अब यानी कि ये डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंट जैसे कहें यहाँ पे प्रोजेक्ट लोकेशन जिस पे डिपार्टमेंट 4 वर्क कर रहा है, डिपार्टमेंट सपोज नंबर 5 वर्क कर रहा है, तो अब ये आप रिलेट करो कि ये कहाँ रेफर कर रहा है, ये रेफर कर रहा है किसको, डिपार्टमेंट टेबल को। हियर वी हैव अ डिपार्टमेंट टेबल, इसके करस्पॉन्डिंग, लिखा है हाँ डिपेंडेंट मैनेजर, डिपेंडेंट नहीं है, डिपार्टमेंट होगा बेटा, डिपेंडेंट नहीं होगा, मैनेजर डिपेंडेंट मैनेजर नहीं, डिपार्टमेंट मैनेजर होगा, उसको चेंज कर लेना, ठीक है, डिपार्टमेंट मैनेजर। तो यहाँ पे देखिए ये किसको लोकेट कर रहा है, इस डिपार्टमेंट को। तो डिपार्टमेंट जो जो हैं इनके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल जाएंगे, उनके मैनेजर, क्योंकि मैनेजर का लास्ट नेम, मैनेजर भी तो एक एम्प्लॉई ही होगा, वो किस टेबल में है, इस टेबल में। तो आपने यहां से मैनेजर एसेसन निकाल लेंगे, और ये देखो किसको रिलेट कर रहा है, एसेसन ऑफ एम्प्लॉय। तो उसको अगर हम कंपेयर कराएंगे तो आपको फर्स्ट नेम भी मिल जाएगा, लास्ट नेम भी मिल जाएगा, एड्रेस भी मिल जाएगा, और बर्थ डेट भी मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को? फिर से इसको एक बार देखो और फिर उसके बाद लिखते हैं कि वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि इंफॉर्मेशन दी गई है वो क्या है और कहां से हमें क्या निकालना है। तो देखो, फॉर एवरी प्रोजेक्ट लोकेटेड एट चेन्नई, तो लोकेशन हमने चेक की, तो प्रोजेक्ट टेबल से हमें क्या मिल जाएगा, दो चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। वो क्या क्या मिल रही हैं, प्रोजेक्ट नंबर और डिपार्टमेंट नंबर। अब लेकिन उस डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट मैनेजर और लास्ट नेम फर्स्ट नेम क्या है, तो इसके डिपार्टमेंट को चेक करो, ये किसको रिलेट कर रहा है, ये कर रहा है डिपार्टमेंट को, क्योंकि बट इसमें डिपार्टमेंट का लास्ट नेम और वो सब मैनेजर का लास्ट नेम वगैरह नहीं दी है, यानी कि फिर कैसे करें, तो उस डिपार्टमेंट के मैनेजर का एसेसन है जो एम्प्लॉय टेबल को रिफर कर रहा है, तो हम यहाँ से एसेसन नंबर निकाल लें, इसके साथ मैच कराएं, और जो जो एसेसन मैनेजर एसेसन से मैच करते हैं वो मैनेजर होंगे जो इनको इन डिपार्टमेंट के इस लोकेशन पे जो प्रोजेक्ट हैं उनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो अब लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या हमने बताया, क्या लिख कर रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, क्या लिखें, बताओ कोई, प्रोजेक्ट लोकेशन, क्या लिखा जाए, क्या कौन सा ऑपरेशन यूज करें,
सर सिग्मा Sigma project location Chennai. Sigma P location equivalent to Chennai. Very good. P location equivalent to Chennai. और कहाँ से? ये आ गई प्रोजेक्ट से। और इसमें से हमें चाहिए क्या क्या? इसमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, एक बार और हमने इसके ऊपर ऑपरेशन कर दिया, किसका? भाई इस टेबल से जब निकालेंगे तो हमें क्या आ जाएगा? पी नंबर आ जाएगा और क्या आ जाएगा? कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई और इसको हमने डाल दिया एक टेबल में, टेम्परेरी टेबल में। ठीक है, दैट विल ऑल प्रोजेक्ट विच आर लोकेटेड एट चेन्नई वी कैन गेट हियर प्रोजेक्ट नंबर एंड डिपार्टमेंट नंबर। यानी कि एक तरह से एक टेबल बननी होगी जिसमें आपके पास दो एंट्री आ गई, पी नंबर और उनके डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, जैसे कहें अगर यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नंबर P2 है, P5 है, ठीक है, और इनकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट 4 हो गया, सपोज ये 5 4, ये हमारी T1 में एंट्री आ गई फॉर एग्जांपल, कोई भी हो सकता है। अब करना क्या है? अब हमने क्या की, इन डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने वाले मैनेजर, तो डिपार्टमेंट को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो डिपार्टमेंट का कंट्रोल, तो डिपार्टमेंट टेबल में अगर देखें तो केवल हमें उसके मैनेजर का एसएसएन नंबर मिल सकता है। तो इस टेबल को किससे करा दिया? मैं डिपार्टमेंट टेबल के साथ हमने इसको ज्वाइन। आपकी वह कंडीशन क्या होगी? कंडीशन बताएं बेटा क्या होगी? क्या कंडीशन लिखे हैं? कंडीशन यहाँ लिखी जाती है ज्वाइन के लिए। ज्वाइन की किस भी आप पे ज्वाइन करें? कौन बताएगा? T1 dot D num equals to department dot D number. बहुत बढ़िया। T1 dot D number equals to डिपार्टमेंट। बाद में अगर देखिए, अभी हमें अलियासिंग नहीं बताई। अलियासिंग मीन्स आप नाम को चेंज कर सकते हैं, डिपार्टमेंट एज डी, बाद में बताएंगे इसको। डिपार्टमेंट डॉट डी नंबर क्या है? एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट डी नंबर, राइट? एट्रीब्यूट इज व्हाट इज, दैट इज डी नंबर। एट्रीब्यूट है उसी के साथ, राइट? अब यहाँ से आ गया, ठीक। अब यहाँ से आपको एक टेबल मिल गई जिसमें इसके साथ में, इन डिपार्टमेंट के साथ में आपके पास और इंफॉर्मेशन किसकी? डिपार्टमेंट की साथ में मिल गई। ठीक, इसमें से क्या चाहिए? इसमें से हमें क्या चाहिए भाई? इससे हमें प्रोजेक्ट नंबर भी चाहिए, डिपार्टमेंट कंट्रोल इन डिपार्टमेंट भी चाहिए और MGR SSN चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो इसको और शॉर्ट कर लो, इसके ऊपर आप अप्लाई कर दो पाई ऑफ अगेन पी नंबर, ठीक है, डी नंबर और क्या? MGR SSN। ये आपके पास एक नई टेबल आ गई जिसको कह रहे हैं इसके ऊपर अप्लाई है, तो ये हमारी ये होगी T2 टेबल। अब क्या चाहिए? अब इस टेबल को किसके साथ मर्ज करना है, ज्वाइन करना है? एम्प्लॉय के साथ। अब हमने इसको T2 नाउ मर्ज विद एम्प्लॉय टेबल। Now, what will be the condition for this? T2 dot MGRSSN equivalent to employee dot SSN। अब ये वो सारे मैनेजर हैं कंट्रोलिंग। अब इसमें से क्या चाहिए हमें? इसमें से जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो निकाल लो। पाई, पी नंबर
प्रोजेक्ट नंबर, ठीक है क्या, डिपार्टमेंट नंबर और क्या चाहिए। अब हमारे पास इसमें लास्ट नेम चाहिए, ठीक है, फर्स्ट नेम नहीं लास्ट नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए और डेट ऑफ बर्थ चाहिए। क्या कौन सा एट्रीब्यूट है, बर्थ डेट, right, and that will be your result. Right, समझ में आ रहा है, ये निकालेंगे आप। यस सर। सभी को क्लियर हुआ ये? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। नोट करते हो आप लोग? कुछ लोग Yes, sir. करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। यस Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो। फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय, फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय who work on all project controlled by department number फिर से एक नया ले लें। बताइए, फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क ऑन ऑल प्रोजेक्ट कंट्रोल बाय डिपार्टमेंट नंबर। क्या इंफॉर्मेशन होगी, कैसे करेंगे? अभिनव चौहान, अभिनव चौहान, अभिनव, नहीं है अभिनव। अभिनव चौहान रिप्लाई तो कर रहे हैं। क्या हुआ? मैंने कहा प्रॉब्लम जो है, क्वेश्चन मैंने दिया है कि फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क ऑन ऑल प्रोजेक्ट कंट्रोल बाय डिपार्टमेंट नंबर 5। हाउ टू डू दिस? आवाज नहीं है आपके वहां पे? माइक ऑन कर लो। नेटवर्क इज नॉट गुड। कोई नहीं, चलिए छोड़िए। नहीं, और कौन बताएगा? अभिषेक रावत, चलिए अभिषेक रावत बताएंगे। अभिषेक, अभिषेक आर यू देयर? अभिषेक नहीं है? अभिषेक रावत, आदेश विश्वकर्मा,
आदेश विश्वकर्मा, आधे तो गायब हो गए होंगे लग रहा है पक्का। और देखें कौन कौन है। आकाश कुमार, यस सर। अभिनव चौहान, चलो चलो अभिनव चौहान की बात हो गई। अभिषेक बुराई, अभिषेक, यस सर। हेलो अभिषेक सिंह, हेलो। यस सर। हाँ अभिषेक हेलो सिंह सर। सर, अभिषेक बड़ो, आई एम ऑडियो। अभिषेक रावत, अभिषेक रावत हैं? अभिषेक रावत नहीं है, चलिए छोड़ो। आदित्य कुमार, रोल नंबर 15, आज आए हो? यस सर। बेटा तुम्हारी अटेंडेंस 2-3 दिन से लग नहीं रही क्योंकि तुम दिखते नहीं हो, बताइए। आ रहे हो आप? सर नेटवर्क इशू रहता था सर, उस समय टावर खराब हो गया था। अरे बेटा तुम्हारे यहाँ नेटवर्क इशू रहेगा तो फिर क्या बताएं, कहाँ रहते हो? सर मैं बिहार से चला है सर। हाँ? नोएडा में रहता था, साल में अपने बिहार से। नोएडा में रह के तुम्हारे टावर खराब हो रहे हैं तो फिर भाई जो बिहार वगैरह में कहाँ रह रहे हैं दूर दराज में तो कैसे होगा? बिहार हाँ हाँ, बिहार में आया हूँ चलिए सर। कोई नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। चलो आप लोगों को जो भी है, जो पढ़ रहे हैं उन्हें तो कम से कम पता लग जाए कि क्या है। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या करना था। फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क ऑन ऑल प्रोजेक्ट कंट्रोल बाय डिपार्टमेंट नंबर 5। तो क्या दिया है कि प्रोजेक्ट कंट्रोल बाय डिपार्टमेंट नंबर 5 की इंफॉर्मेशन चाहिए उन पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो बताओ कहां से आएगी इंफॉर्मेशन? प्रोजेक्ट कंट्रोल बाय डिपार्टमेंट कहां, कौन सी टेबल में दिया है? चेक करो, एम्प्लॉय में प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट दिया नहीं, एम्प्लॉय नहीं इसमें नहीं दिया। हाँ यहाँ पे भी नहीं दिया, ये बट यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट भी है और उसके साथ में कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट नेम भी है। यानी कि फर्स्ट वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल प्रोजेक्ट विच इज कंट्रोल बाय द डिपार्टमेंट। क्लियर? तो डिपार्टमेंट 5 कौन से प्रोजेक्ट कंट्रोल कर रहा है वो इंफॉर्मेशन मिल गई। अब उन प्रोजेक्ट पे कौन काम कर रहा है, ठीक है, उन प्रोजेक्ट पे कौन काम कर रहा है ऐसे हमें चाहिए। ठीक है, तो अब बताओ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कहाँ से, कौन काम कर रहा है इन प्रोजेक्ट पे, इस टेबल की एंट्री कहाँ पे है कि इन प्रोजेक्ट पे काम करने वाले किस टेबल से आएंगे? बताओ, कोई भी बता दे। एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो अगर सपोज कुछ ऐसे डायरेक्ट भी नहीं हैं। डिस्कस कर सकते हम उसको, पहले डिपार्टमेंट वाली को करेंगे फिर नहीं 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 डिपार्टमेंट नहीं से नहीं, इसमें भी देखो अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंट नंबर से अगर जाएंगे तो यहाँ तो मैनेजर हैं उस डिपार्टमेंट के, एम्प्लॉय तो निकलेंगे ही नहीं। वर्कर भी तो होंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर देखें कि इन प्रोजेक्ट पे काम करने वाले एम्प्लॉय कौन से होंगे, वो ये देखो टेबल से आ रहे हैं कि इन प्रोजेक्ट पे कौन से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ये मिल जाएगा। यानी कि पहला एक तो प्रोजेक्ट टेबल हमें देखनी है, उसके बाद क्या चेक करना है, हमारे पास वर्क ऑन के साथ मैच कराना है कि कौन से एम्प्लॉय आपके आपके वर्क कर रहे हैं। और इस वर्क ऑन एम्प्लॉय के साथ देखो जब हम ये सेशन को इससे मैच कराएंगे तो सारे एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, करके अब बताओ फटाफट जल्दी जल्दी सभी लोग। व्हाट्सएप करो या फिर किसी माइक्रोसॉफ्ट टीम में मुझे फॉरवर्ड करो।
बनाया है आप लोगों ने? बना रहे हैं या फिर बैठे हैं? किसी ने भेजा, देखें। Yes, Salman Khan, one of them. Find the name of project, right? Very good. Project number निकाल लिए इससे, इसको workathon के साथ मर्ज किया, right? All those who works on the project number we get the ESSN. Find ESSN से हमें all employee name, first name, last name, middle name. Good, very good. Very good, अमन, बहुत बढ़िया। अमन, अमन का यस सर। अच्छा अच्छा किया, दिखा देता हूँ मैं, बच्चे ने किया है। आप लोग भी देख लें इसको। क्या है कि इसने सबसे पहले प्रोजेक्ट के ऊपर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 5 करके वो सारी एंट्री और उसमें से निकालिए प्रोजेक्ट नंबर। प्रोजेक्ट T1 इनको अकाउंट के साथ मर्ज किया, ज्वाइन किया विद देयर डिपार्टमेंट या प्रोजेक्ट में T1 डॉट पी नंबर इक्वल टू वर्क्स ऑन, राइट? T1 डॉट पी नंबर और वर्क्स ऑन डॉट पी नंबर के साथ मर्ज किया, उससे निकाल लिए ESSN। ठीक है, अब इस T2 से एम्प्लॉय टेबल को मर्ज किया और उसमें से लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम निकाल लिया। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आई हैव ये 2 क्वेश्चंस और भी मैंने दिए हैं, इनको आप लोग करके लाइएगा और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, राइट? समझ में आ रहा है ना? अब इसमें से कौन कौन और नहीं हो सकते हैं, मैं उनको जरा देख लेता हूँ। शोएब अहमद, शोएब अहमद, सर वो आंसर दिखा दीजिए एक बारी फिर से। अरे आंसर दिखाना है, ठीक है। यस सर। ये देखो कुछ दिख रहा है थोड़ा सा, कैसे होता है? सर देख लेना, जूम कर लेना, कैसे जूम कर लेना। मैं इसको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ।
See here, dnum equivalent to 5 project. Project के ऊपर dnum equivalent to 5, we get the all the project number that will assign to T1. Then T1 cross works on जो हमने P नंबर के साथ मर्ज किया, ठीक है, और ESSN नंबर निकालिए. अभी इस T2 को हमने एम्प्लॉय के साथ ज्वाइन किया. Then we get all the information, those employees जिनके वो हैं वो सारे इंफॉर्मेशन, ठीक है.